Hello everyone. Hope everybody is fit and fine at home and you people are putting a lot of hard work, okay, to prepare for your final term, bache, which is supposed to be, I think so, from 10th of Feb. Okay. So this age standard is very important part of your school life, you can say. Because you are in a junior section, but you are seniors of the junior section. So next year you'll be going for the sub senior group and the senior group 9th and 10th standard. So this important time, each and everything, bache, especially science I am talking about. Your concepts should be very clear, bache. The base of your life, you can say the base of your science life, it starts with 8th standard, 9th standard and 10th standard. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है साइंस के बारे में. उनके बिना 8th standard would be very difficult to survive, बच्चे. But still this 8th standard, 9th standard, ये हमें एक और मौका दिया जाता है एकेडमिक्स में, जब हमारे कंसेप्ट जो हैं हम उसे ब्रश अप कर सकते हैं. Okay, I hope my face is still familiar to you. Okay, or you remember, I am Puneet Bishnoi. Okay, I was there with you before this corona and all, and now as I'm not there in the school, but I still want to be there with you, bache. And for that reason, number of students who were there in link with me, they had asked me certain questions. So I thought of making a video and we can circulate it to everybody, so that bache, you can also easily do those questions and in a proper way. Okay, so I'll start with the basic questions. So today I'll cover first the physics question, bache. Physics questions from chapter calorimetry, or it was the chapter of heat in your books. Okay, physics chapter heat. In this chapter of heat, first the basic thing, bache, heat is represented by letter Q, and heat depends upon three factors. What are those three factors? Mass, specific heat capacity and change in temperature. So I'll be quick in doing these concepts first. Mass. देखो heat का mass के साथ क्या relation है? First of all, think when you are at home, बच्चे, your mother gives you one chapati or one paratha, बच्चे. ठीक है, आपको दे दिया, एक glass milk दे दिया आपको. The paratha is also very hot and the glass of milk is also very hot. Okay, and suddenly your auto driver or the van driver, किसी जमाने में आते थे ना ऑटो ड्राइवर और वैन ड्राइवर आपको लेने, ऑनलाइन नहीं होता था तब. So what happened was he came and he started, बच्चे, giving you horns. So what you will do is, आप क्या करते हो, या तो उसे छोड़ देते हो, और अगर आपको उसे खाना है तो आप क्या करते हो, और what your mother does, उसको पीसेस में तोड़ देते हैं, है ना. तो इकट्ठा खाना बहुत मुश्किल था, उसको पीसेस में तोड़ दिया और तोड़ते ही उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. You had a glass of milk, either you'll drink sip by sip, or what you take a small amount of milk in a bowl, बच्चे, you shake it, move it, and then what happens, you drink it. तो क्या हुआ, when the mass was bigger, the heat in it was also very large. When you break that mass into small pieces, the heat also decreases or heat gets dissipated easily. So what happens is, heat is directly proportional to mass. जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ता है, उसके अंदर हीट स्टोर करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. देन चेंज इन टेम्परेचर. कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी हमें लगती है, ये डिपेंड करता है हमारे और उसके टेम्परेचर के डिफरेंस में. Just for an example, what happened was today in the morning when I went out and when I touched the grill of my house, the grill which was on the outer boundary, it was very cold. But when I came inside and touched the grill which was inside, बच्चे, on the staircase, it was not that cold. ठीक है, तो जब मैंने ठंडी ग्रिल को टच किया और जब मैंने अंदर वाली ग्रिल को जाके टच किया, तो मुझे दोनों में डिफरेंस लगा. ठीक है, उसको टच करूंगा ज्यादा ठंडे वाली को तो मेरी बॉडी से ज्यादा हीट जाएगी उसकी तरफ, अंदर वाली को टच करूंगा तो मेरी बॉडी से कम हीट जाएगी उसकी तरफ. इसका मतलब व्हाट, heat is directly proportional to change in temperature. My body temperature was 37 degrees Celsius. The grill which was on the outer boundary, due to severe cold, it was at 2 degrees.
but the grill which was inside it was at 10 degrees. तो इस केस में डिफरेंस कितना है 35 का, इस केस में डिफरेंस कितना होगा 27 का. तो where the heat transfer will be more, the heat transfer will be more here बच्चे. तो जितना आप टेम्परेचर में चेंज ज्यादा रखते हो दो बॉडीज के बीच, उतना जल्दी हीट क्या कहती है ट्रांसफर करती है. एक्चुअल में आप जो ये फॉर्मूला लिखते हो ना, इसे आप हीट नहीं मेजर करते, एक्चुअल में आप हीट ट्रांसफर मेजर करते हो कि जब दो बॉडीज को आप कांटेक्ट में लेके आए जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी. एक्चुअली वी मेजर इट, बट चलो हम ये लेके चलते हैं कि जब दोनों बॉडी है तो अगर सेम टेम्परेचर पे है तो नो हीट इज ट्रांसफर्ड एंड ऑल, तो हम एक क्राइटेरिया हम ये रख लेते हैं, हम हीट लिख देते हैं, एक्चुअल इट इज हीट ट्रांसफर. ओके, फिर बच्चे यू हैव टू सी दिस स्मॉल सी, ये लगती स्मॉल है बट इट्स वेरी वेरी डेंजरस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक समझने से पहले आप समझो हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी का मतलब है, आई टेल यू इन हिंदी फर्स्ट, हीट कैपेसिटी का मतलब है आप किसी सब्सटेंस को कितनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए. ठीक है, कोई भी बॉडी आपके पास है, कितना मर्जी उसका मास है, आप उसको हीट दो, कितनी हीट आप उसको दे सकते हो, कितनी हीट वो ले सकती है 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए, और द अमाउंट ऑफ हीट विच अ बॉडी कैन रिलीज टू डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. ये तो हो गया हीट. अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है 1 kg ऑफ अ बॉडी टेक्स सम हीट to increase its temperature by 1 degree, or 1 kg of a body loses heat to decrease its temperature by 1 degree. देखो 1 kg of iron, 1 kg of wood, 1 kg of meat, 1 kg of water, 1 kg of juice, 1 kg of anything around you. ये तो 1 kg तो 1 kg रहेगा हमेशा हर सिचुएशन में. अब ऐसे तो नहीं है 1 kg वाटर यहां 1 kg है, मैं इसको मून पे ले जाता हूं तो वो हाफ kg हो जाता है, नहीं, बिकॉज मास रिमेन सेम एवरीवेयर. So that 1 kg of water everywhere at each and every place will take up the same amount of heat to increase its temperature by 1 degree. तो हर बॉडी की एक क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये बॉडी की क्वालिटी है हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइज करना. अगर वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइज करती है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हायर, जैसे वाटर को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ता है. एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यू हैव कंडक्टर्स आयरन, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है. तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी हीट क्या करेगा, लूज करेगा, या फिर जल्दी हीट मतलब जल्दी हीट लूज, जल्दी टेम्परेचर गिराएगा, सॉरी, वो हीट लूज करके जल्दी टेम्परेचर गिराएगा, या वो हीट गेन करके जल्दी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है. इज इट क्लियर? वी टेक अ सिंपल एग्जांपल. घर के अंदर एक ब्रिक और एक आयरन को रख दो. ठीक है, आज जब भी आप ये वीडियो आप तक पहुंचे रात को ये करना, ब्रिक और आयरन पीस को रख देना बाहर खुले में. ठीक है, सुबह जाके उनको टच करना, आप ब्रिक को टच करना, आप आयरन को टच करना. आयरन आपको ज्यादा ठंडा लगेगा, ब्रिक कम. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की क्या है, बहुत कम. थोड़ी सी हीट दी, टेम्परेचर डाउन, थोड़ी हीट दी, टेम्परेचर डाउन, थोड़ी हीट दी, टेम्परेचर डाउन. टेम्परेचर बहुत कम हो गया, आपको बड़ा ठंडा लगेगा. ठीक है, अब आप क्या करो, दिन में अगर धूप निकल आती है तो उसी आयरन पीस को और उसी ईंट को, ब्रिक को आप धूप में रख दो. ठीक है, शाम को टेस्ट करना या धूप में ही टेस्ट करना, 2 घंटे रखने के बाद ब्रिक को हाथ लगाना, आयरन को हाथ लगाना, आयरन गर्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर वो लूज करने के लिए कम हीट रिलीज करके भी टेम्परेचर कम कर जाता है तो वो टेम्परेचर राइज भी कम हीट लेके ही कर देगा. इज इट क्लियर? इसीलिए बच्चे अर्दन पॉट्स, घड़े जो हम यूज करते हैं उसमें पानी सर्दियों में गर्मियों में उसमें पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है, इवेपोरेशन की वजह से. ठीक है, वाटर है उसमें. आपके मिट्टी के घर होते हैं, जो मिट्टी के घर सर्दियों में क्या रहते हैं, गर्म, गर्मियों में क्या रहते हैं, ठंडे. क्यों रहते हैं? क्योंकि मिट्टी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिट्टी से भी ज्यादा है. ओके, इज इट क्लियर?
पॉट में पानी ठंडा रहता है इवेपोरेशन की वजह से, वो वाटर वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है। चलो विल डू सम क्वेश्चन हियर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले एक हीट के यूनिट्स जूल, मास के एसआई यूनिट केजी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट जूल पर केजी केल्विन। आदत डालो हमेशा केल्विन लिखने की, ठीक है, बट डिग्री सेल्सियस यू कैन टेक इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही बात है। वैसे चलो इसमें भी आप जूल पर केजी केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज है, अगर यहां केजी की जगह ग्राम्स हो जाएगा तो ये भी आपकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, ग्राम्स में। एक कॉमन यूनिट होता है जिसको आप बोलते हो कैलोरी, एंड एक्चुअली 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, या फिर इसको हम 4.2 जूल्स भी लिख देते हैं। 1 कैलोरी, डॉक्टर कहता है ना कई बार ईट कैलोरीज, बर्न कैलोरीज, तो वो बर्न क्या करना है आपको, फूड बर्न करना है जो 4.2 जूल्स ऑफ हीट रिलीज करता है। ओके, चल मैं फिर से आता हूं बच्चे इसी पॉइंट पे, हीट का यूनिट कैलोरी भी लिख सकते हो। ओके, पे अटेंशन, आई हैव अ न्यूमेरिकल, आई गेस इट्स ऑन पेज नंबर 92। 5000 calories of heat is supplied to 1 liter of water. Find the rise in temperature of water given specific heat capacity of water is 1 calorie per gram degree Celsius, density of water is 1 gram per cc। चलो एक बार लिखते हैं क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है हीट, हीट कितना है बच्चे, 5000 कैलोरीज। चलो वेरी गुड। उसके बाद गिवन है सप्लाई टू 1 लीटर, लीटर्स में क्या मेजर करते हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर राइज करता है वो फाइंड आउट करना है हमें। गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी गिवन है आपको कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद एक अलग चीज गिवन है मुझे, डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1 ग्राम पर सीसी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी गिवन, इट इज गिवन 1 ग्राम पर सीसी। देखो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। सो मास चाहिए आपको, मास नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए आपके पास है, डेल्टा टी चाहिए ये भी आपके पास नहीं है, और Q की वैल्यू आपको गिवन है। देखो अगर 4 वेरिएबल्स हो उसमें से 3 होने जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वी डू इज फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी वी हैव अ फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है मेरे पास 1 ग्राम पर सीसी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज 1 लीटर्स, इधर है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक रिलेशन याद रखना है, 1 ml इक्वल्स टू 1 cc मींस सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा के लिए याद रखो। 1 लीटर इज नेवर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, बट 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, 1 लीटर के पहले बना लेता हूं ml, 1000 ml, और 1000 ml ही मतलब 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब। v की जगह मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा, 1000, तो मास निकल के आता है मेरे पास 1000 ग्राम्स। बच्चे कितना आता है हमारे पास, 1000 ग्राम्स। तो चलो अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। Q की वैल्यू डालो 5000 इक्वल्स टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, आई गॉट इट 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच C, 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो आप इसको इधर ले आओ, नहीं तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो आप, योर विश, ईदर दिस 1000 कैन कम हियर और यू कैन कैंसिल आउट, 0 and 0 कैंसिल, सॉरी ये जी नहीं लिखोगे, 0 and 0 कैंसिल, 0 and 0 कैंसिल, सो डेल्टा टी इक्वल्स टू 5, देखो यहां डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस। सो एट लास्ट बच्चे मेक अ हैबिट, यू विल राइट change in temperature is 5 degree Celsius. You can rewind the video if you did not get any step, or you can always ask me बच्चे, I'll give my number in the end, so you can ask me about any doubts in science बच्चे, it may be physics,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जितनी हेल्प हो सकती है आई डू, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। बच्चे देखो, जब भी कोई चीज अपना फेस चेंज करती है, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर नहीं आता तो पूछ लेना। जब भी कोई चीज टेम्परेचर चेंज करती है तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। लेकिन जब स्टेट चेंज होती है, मींस अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, उस केस में Q का फॉर्मूला हो जाता है Q इक्वल्स टू M इंटू L, एंड दिस L इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट, means the amount of heat required by 1 kg substance to change the state। latent का मतलब होता है hidden heat। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करते हो, जितनी हीट उसे चाहिए उसको आप क्या बोलते हो, लेटेंट हीट। बच्चे तो ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, कैलकुलेट द लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इफ Q 8000 जूल्स। देखो कई बार आपको पता नहीं चलता क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूनिट देखा करो। अगर आपको दिया हो अ बॉय हैज 20 केजी, तो आपको अंडरस्टूड है मास है 20 केजी। अ बॉय हैज 2 लीटर्स, तो क्लियर है वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। ठीक है, ओके। ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 25 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। कितने ग्राम से बच्चे, 25 ग्राम्स। अब देखो, आप SI यूनिट में भी निकाल सकते हो, CGS में भी, इट्स योर चॉइस। First I am doing in the same way, Q equals to M into L because the process mentioned is melting। अगर process ना mention होता तो MC delta T होता। ठीक है, melting constant temperature पे होती है, इसलिए वो delta T वाला फैक्टर नहीं लाते। 8000 equals to 25 grams multiplied by L, L equals to 8000 upon 25। You can cancel it in your own way, it's all your wish। You can cancel it on the table of 25 बच्चे। 25 ones are 25 threes are 25 twos are 0, so it will be 320 जूल पर ग्राम। ये तो हो गया जैसे है वैसे ही, निकाल दिया आंसर। अगर आपको SI यूनिट में पूछ लेते तो 25 ग्राम्स को केजी में चेंज कर दो, 1000 हो जाएगा। अब L की वैल्यू आएगी 8000 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो 25 तो कैंसिल तो वैसे ही होगा, 320, सो दिस विल बी 320 into 10 raised to power 3, 123 जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, पर क्या हो जाएगा, केजी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रखना है, जब भी स्टेट चेंज होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M into L, and whenever there is a change in temperature, the formula that you get will be MC delta T। Okay, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट। फिर से मेल्टिंग का केस आ गया, 2 kg of ice, mass equals to 2 kg, given specific latent of fusion L equals to 336 into 10 raised to power 3 joules per kg। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, Q equals to M into L। ठीक है, सो आई थिंक सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, अब आता है कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन। अब आता है कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। कैलोरीमेट्री में क्या होता है बच्चे, आपने स्टेटमेंट आपको रट ली होगी आप लोगों ने, द हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी। करेक्ट है नहीं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है बट बच्चे प्लीज देख लेना इसे। ठीक है, नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। आपके पास दो बॉडीज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए बॉडी 1 एंड सेकेंड शुड बी बॉडी 2। ठीक है, कंडीशन बता रहा हूं, बॉडी 1 शुड बी हॉट, अदर बॉडी शुड बी कोल्ड। मींस दोनों के बीच में डेल्टा टी होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा होना चाहिए बच्चे। अगर दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एक और चीज, दोनों बॉडीज का फाइनल टेम्परेचर जो है वो दोनों बॉडी का सेम होगा। अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं फोन से, कहीं आपको लगे सॉल्यूशन देख रहे हो, मेरे पास एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, जब मैं दोनों को टच करता हूं
दोनों आपस में हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कब तक? जब तक दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। ठीक है, आप ठंडा पानी गर्म पानी के अंदर डाल दो, नहाते हैं तो हम लोग पहले गर्म पानी लेते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं, डाल दिया। अब ठंडे पानी का टेम्परेचर अलग था, गर्म का अलग है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो गए तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। याद रखना है इस चीज को। चलो, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कहता हूं एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए था, बट पहले ये क्वेश्चन आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो, आयरन रॉड ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास, आयरन 80 डिग्री पे है, इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर एट 20 डिग्री, मतलब एक 80 पे एक 20 पे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसको लिखना हमेशा ऐसे है, आयरन एंड दिस साइड व्हाट यू विल राइट एज वाटर। दो कैटेगरीज हो गई। आपको पता है टेम्परेचर आयरन का ज्यादा है तो इसको हॉट लिख लो, इसको कोल्ड लिख लो, तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा याद रहेगा। चलो, iron rod at 80 degree Celsius. So temperature first of iron is 80 degree Celsius. Mass of iron is 0.8 kg. Dropped into 1 kg of water. Mass of water 1 kg. And temperature T1, first temperature of water is 20 degree Celsius. चलो, ठीक है। What will be the final temperature of the rod and water in equilibrium? Equilibrium का मतलब होता है दोनों का टेम्परेचर सेम। ठीक है, आपसे पूछा है कि दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो हमें दे दिया कि आप सॉल्व कर। चलो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। इसका टी फाइनल हमें नहीं पता, मैं इसको लिखता हूं कैपिटल टी। इसका टी फाइनल मुझे नहीं पता, मैं इसको लिखूंगा कैपिटल टी। अब समझने वाले समझ गए होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के फाइनल टेम्परेचर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बताया था ना कि हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, दोनों के फाइनल टेम्परेचर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, क्या स्टेट चेंज हो रही है? नहीं, तो क्यू का फॉर्मूला क्या लगेगा? एम सी डेल्टा टी। चलो, हम लोग एक बार देख लेते हैं। आयरन की आपको सी नहीं गिवन है बच्चे, वैसे पेपर में आपको सी की वैल्यू गिवन होगी। मैं यहाँ पे आयरन की सी और जो वाटर की सी की वैल्यू है वो लिख लेता हूं। ठीक है, आयरन बच्चे सी की वैल्यू आयरन की होती है आपकी 0.390 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये आपको 400 भी मिलेगी। ठीक है, 390 भी हो सकती है और ये 400 भी हो सकती है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं एक बार यहाँ पे 400 ले रहा हूं, बट अगेन आई एम सेइंग इट मे बी 390। और जो वाटर की सी की वैल्यू होती है वो होती है बच्चे 4200, सॉरी अगर आप केजी में ले रहे हो तो 400 होगी, 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। देखो ये वेरी कर सकती है, आपकी बुक में कुछ और हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने इसको 400 लिया, इसको 4200 लिया। अगर ये ग्राम में लेना तो ये होता 0.4, ये होता 4.2। चलो, तो यहां तक हमारी चीजें सॉल्व हो गई है। आयरन रॉड टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर। आयरन रॉड का टेम्परेचर डाउन जाएगा, वाटर का टेम्परेचर ऊपर आएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां दोनों का टेम्परेचर सेम। मींस जहां दोनों का फाइनल टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर उससे कम था, आयरन का टेम्परेचर उससे ज्यादा था। ठीक है, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा उससे 80 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, लेकिन उसी से 20 डिग्री सेल्सियस कम है। तो डेल्टा टी जब भी आप लिखते हो, डेल्टा टी में आप ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हो। ये हॉट है, मींस 80 डिग्री इज मोर देन योर टी डिग्री। हियर डेल्टा टी, ये टेम्परेचर कम है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा, T माइनस 20। यही आप लोग गलती करते हो। What we do is we take this as 80 minus T, not a problem, but this side we write 20 minus T, और पूरा क्वेश्चन उससे गलत हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आयरन वाली हीट QI M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और इधर जो वाटर की हीट है इट इज ऑल्सो इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी बच्चे। ठीक है, लेकिन ये दोनों हीट इक्वल होंगी, क्यों? वॉट एवर हीट आयरन लूजेस वाटर विल गेन दैट हीट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो विल राइट हियर 0.8 इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी 80 माइनस टी। मैं आपको कह रहा हूं वैल्यूज कुछ और आ सकती है, अगर ये वैल्यू कुछ और दे रखी होगी आपको, तो इक्वल्स टू m, इसका m कितना है 1, मल्टीप्लाइड बाय c 4200 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 20।
अब ध्यान दो, कैंसिल करेंगे यही पॉइंट इधर 0, 0 and 0 cancelled. Now this 0 and this 0 will also get cancelled. 4 ones are 4 ones are 4 0 and 5. चलो अब कुछ और बचा है नहीं. 880, 8 into 86 40 minus 8t equals to 105t minus, मल्टीप्लाई कर दो इनको बच्चे, 2100. चलो अब क्या हो सकता है, इसको इधर ले आओ, ये उधर चला जाएगा. 640 plus 2100 equals to 105t plus 8t. So this will be what? 2740 equals to 113t. T will be 2740 upon 113. अब ये आपका काम है बच्चे, अब ये मेरा काम नहीं है, ठीक है. कुछ भी वैल्यू आए इसकी, ये अब आपका काम है, ये अब मेरा काम नहीं, ठीक है. तो आप क्या करोगे, वैल्यूज को डेसिमल्स में निकाल के और उसके साथ डिग्री सेल्सियस लगा दोगे. प्लीज यू मे रिवाइंड द वीडियो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. 5 liters of water at 60 degree is mixed with 25 liters of water at 20 degree. What is the final temperature of this water? चलो ये क्वेश्चन करें. लास्ट क्वेश्चन है ये. The video might be too long, but बच्चे this is very very important topic, so you should pay attention towards this thing. Okay? ये बहुत important topic है और मुझे वो कट करने का नहीं है कि एक नेचुरल हो तो आपका भी मन लगता है वीडियो. ओके.